So everyone note down, this is a continuation class of quadratic equation and we are doing number D. Sum number 1 last day हम लोग ने number 6 तक किया था. Number 6 का answer was 9/4, right? Answer of number okay. Now number 7, 8, 9, 10 आंसर फटाफट में सॉल्व करके दिखाया था कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो तुम लोग का ये सॉल्व भी हो जाएगा और आंसर भी टैली कर सकते हो. Alpha plus beta is 3/2. Alpha into beta is half. And now we are in number 7. So the question is alpha cube by beta plus beta cube by alpha. Okay, तो ध्यान से नोट करना है. Take LCM. So we will get alpha to the power 4 plus beta to the power 4 by alpha into beta. We can write alpha to the power 4 as alpha square ka whole square and beta to the power 4 as beta square ka whole square. Now see, I've got two formulas. got two options to apply the formula here. A square plus b square का दो फॉर्मूला हमारे पास है. एक है a plus b whole square minus 2ab और दूसरा है a minus b whole square plus 2ab. Now एक काम करो, कोई एक जना मुझे फॉर्मूला एक बार व्हाट्सएप करो. ये जो फॉर्मूला है ना फर्स्ट डे का, ये क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज ऑफ अलजेब्रा, व्हाट्सएप पे. So see, if you check the formula copy, you have x square plus y square equals to x plus y whole square minus 2xy. All right, or x minus y whole square plus 2 into x into y. But actually I'll apply this formula. I have not used this formula because I know the value of alpha square plus beta square. I think we know alpha square minus beta square also. हाँ, कोई भी अप्लाई कर सकता है दोनों में से. तो बताओ तो एक बार alpha square plus beta square का वैल्यू कितना आया था लास्ट टाइम? Can you help me out? I don't remember. 5/4. 5/4. तो 5/4 का whole square minus we can write alpha square beta square as alpha beta का whole square. What is the value of alpha into beta? It is half. तो ये हो जाएगा half का whole square. By again alpha beta is half. Now let us calculate. It will be 25/16 minus 2 into 1/4 is 2/4. Let's say I will not simplify it. We reduce the करेंगे इसको. LCM ले लेते हैं हम. 25 minus 8/16. 25 minus 8 is how much? 17. So the answer is 17/8. Okay, check box. Then question number 8. Question number 8 में हम लोगों को बोला गया है alpha by 2 beta plus 3 plus beta by 2 alpha plus 3 का वैल्यू निकालना. Let us take LCM. So we'll have alpha into 2 alpha plus 3 beta into 2 beta plus 3 divided by 2 beta plus 3 into 2 alpha plus 3. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 alpha square plus 3 alpha plus 2 beta square plus 3 beta. Multiply the denominator part. So we'll have 4 alpha beta plus 6 beta plus 6 alpha plus 9. अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मैं पेयरिंग करूंगा. क्यों बताओ तो? क्योंकि अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग को वैल्यू पता है, और इन दोनों का मैं पेयरिंग करूंगा कि यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता है. सेम वे डिनोमिनेटर में we have 4 times alpha beta, इसका वैल्यू पता है. इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेना
तो बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा, इसका भी वैल्यू पता है। अब बस सारा वैल्यूज पुट करना है, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5/4, अल्फा प्लस बीटा इज 3/2, अल्फा into बीटा is half, अल्फा प्लस बीटा is 3/2 plus 9। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेना, ये एक्सप्रेशन को, ये आंसर मिल जाएगा। सो आई थिंक यू विल गेट 7 इन द न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में 7 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में मिलेगा 20। So the answer is 7/20. Yes? Okay. Yes, sir. Now, the answer of question number 9. Question number 9 देखना एक बार। 9 और 8 एक जैसे ही एकदम से, बल्कि 9 ज्यादा 8 ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, 9 ज्यादा इजी है। प्रोसेस सेम है। सो वी हैव अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा टाइम्स बीटा प्लस 3, सेम लॉजिक है। देखो इसमें उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा बाय अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 9। इसमें मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पेयरिंग कर लिया और यहाँ पे इन दोनों का पेयरिंग कर लिया 3 कॉमन लेके कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर पाए। देखो लॉजिक एकदम सेम है, मतलब बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे 2 into था, एक मिनट, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5/4, अल्फा प्लस बीटा इज 3/2, यहाँ पे हाफ आ गया, यहाँ पे भी हाफ प्लस 9। इसको सिंपलीफाई करके क्या आएगा? सर वो 3/2 आएगा नीचे, 3 into 3/2, सॉरी 3/2। तो ये हो जाएगा 947, 7 आ गया न्यूमरेटर में, 5/4 प्लस 9/4, 18/5 is almost 23, 23/4 आ जाएगा न्यूमरेटर से। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 23/4 आ जाएगा, चेक करो। ठीक है, और इधर अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 14, शायद 14 है, चेक करो इधर, है ना। हाफ प्लस 9/2, 10/2 that is 5, 5 plus 9 is almost 14, तो ये हो जाएगा 4 into 14। so the answer is 23/56। क्या ये आंसर है? चेक कर देगा 23/56। okay, and the last part was alpha to the power 4 plus beta to the power 4। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, इसको हम लोग अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं। उसमें वैल्यूज पुट कर दो बस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग को वैल्यू पता ही है, पुट कर दो फिर कैसा। ऑलराइट, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, नॉट 3 सॉरी, नंबर 4 से। अब हम लोग नंबर 4 करेंगे। ओके, सो एवरीवन मार्क द क्वेश्चन जो कि अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5, 6, ऑल्सो नंबर 7, बिकॉज ये सारे सम्स में डाउट आ सकता है तो हम पहले ही सॉल्व कराते हैं। एंड नंबर 10 एंड 9,
देखो थोड़ा सा ये सब सम्स कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा। और अगर ये हो जाता है तो नंबर ई में कोई डाउट ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को नंबर ई में डाउट ही नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो यही पे तुम लोग सीख जाओगे, तो फिर तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मेन है ये तुम्हारा पोर्शन। इस पोर्शन में तुम लोग क्या है कि पूरा कैलकुलेशन सीख रहे हो। इस पोर्शन में कैलकुलेशन मतलब ये सब कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, अगर ये सीख जाते हो तुम लोग तो नंबर ई में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन क्वेश्चन नंबर ई। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम सम नंबर 4। ओके, सम नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। हम हर सम में टाइम लेंगे तुम लोगों को, ठीक है, उसके बाद मैं हर सम में सॉल्व करूंगा बोर्ड पे, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। हरिए, everyone note down question number 4, okay? So Abhinit, tell me कि अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो बताओ तो एक बार अभिनीत, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ तो। यस, व्हाट विल बी अल्फा प्लस बीटा? ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स को अगर अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जाए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सर अल्फा प्लस बीटा सर मैंने पी अभिनीत माइनस से पी। पूछा, अभिनीत से पूछा। यस अभिनीत, कैन यू हियर मी? Arpit, tell me what is the answer? तो माइनस पी। Very good. It is minus p. It is quite simple. मतलब अगर देखो इसका मतलब ये वही लोग नहीं बोल सकते हैं जो लोगों ने एक्चुअली कुछ भी नहीं देखा है, मतलब किया ही नहीं, एकदम ब्लैंक एकदम। सो आई विल रिक्वेस्ट दैट इसमें बुरा मानने का बात नहीं है। आई विल आस्क ईच एंड एवरीवन, डू यू नो व्हाई आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट? तुमको लगना चाहिए कि तुम क्लास में हो, ठीक है, और जब मैं जिससे पूछूंगा क्वेश्चन वही आंसर देगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं देखो कितना रिक्वेस्ट करके मैं तुम लोग को मैसेज कर रहा हूँ कि वॉच द वीडियो एंड अटेंड द क्लास, वॉच द वीडियो एंड अटेंड द क्लास। तो जितना तुम पीछे हो, मतलब छोड़ेगा एक एक करके क्लास, पीछे होते जाओ। व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? सो व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? टेल मी आयुष, मुद्रा, टेल मी व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? Yes, Ayush, tell me what is alpha into beta? Yes, 2 by alpha into beta is q. अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद होगा मैंने लास्ट डे इसका मैंने बताया था डेरिवेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बताओ तो? माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। एंड अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए, इट इज इक्वल टू सी बाई ए। लास्ट डे मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस पी बाई 1 एंड अल्फा इनटू बीटा विल बी क्यू बाई 1। अब देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज अल्फा क्यू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यू, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा देखो एक बार ध्यान से। सबसे पहले इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? इट इज x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। I repeat, it is x plus y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। नाउ यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू q, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस p, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। So you will get p square minus 2q. Number 2 now.
अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है, सर वो ब्रैकेट नहीं खोलेंगे उधर में। क्या जरूरत है, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसके बाद बोला जा रहा है कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करेंगे देखना, इन दोनों का पेयरिंग करेंगे। क्यों, देखो बता रहे हैं इसका कारण, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फा टू द पावर 4 को अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बीटा टू द पावर 4 को बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख के, ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which is x plus y का होल स्क्वायर minus 2xy. Alright, now what is the value of alpha square plus beta square? देखो अगर ध्यान से तुम दिमाग लगाओ ना, तुम अगर थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये है, देखो ये पार्ट, ये पार्ट, क्योंकि ये समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पार्ट को डायरेक्ट पुट कर दो ना, क्यों लोग इतना वापस से कैलकुलेशन क्यों करेंगे, p square minus 2q, ये रहा अल्फा, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो अल्फा बीटा तो बाहर है, जिसका वैल्यू q है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना है, इसको वापस से अगर तुम दिखाना चाहते हो कैलकुलेशन में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुट कर दो डायरेक्ट। इन दोनों का सिंपलीफाइड फॉर्म क्या होगा, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इट इज माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे देखना एक बार, आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिखूंगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा, इट इज q, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, अप्लाई a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, व्हिच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा p टू द पावर 4 4q स्क्वायर 2 2 जा 4 p स्क्वायर q माइनस q स्क्वायर। इसको अगर हम सिंपलीफाई कर दे तो क्या आएगा बताओ, p टू द पावर 4, व्हाट इज 4q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इट इज 3q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, you can leave your answer there. Okay, now everyone try question number 5. So question number 5 एक बार ध्यान से नोट करना। So you are given a quadratic equation, please note down, तुम लोग को एक quadratic equation दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के बारे में, ठीक है, रूट्स के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया जा रहा कि रूट्स अल्फा बीटा है, ए बी है, सी डी है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे पता है, let a and b be roots. So alpha and I mean I will not take a because a represents something, so let alpha and beta be the roots। देखो सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10 वाला नहीं है चैप्टर, क्वाड्रेटिक क्लास 10 में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, उसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो। यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि रूट्स अगर दिया है अल्फा बीटा तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो लेट ले लो और रिलेशनशिप निकालो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो बताओ तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना यहाँ पे माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 2 बाई ए के बराबर, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, सो व्हाट इज 3a by a, 3a by a will be equal to how much, 3। अब देखो बुक में कंडीशन क्या दिया है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, अब देखो अब उस कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। इतना तो देखो मिनिमम, देखो ध्यान देना, ये तो मिनिमम कंडीशन है कि सम रूट्स का माइनस b बाई a के बराबर होता है, प्रोडक्ट जो है वो c बाई a के बराबर होता है, ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद एडिशनल क्या दिया है इसमें बताओ तो, एडिशनल ये दिया हुआ है, वी नो दैट देखो लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स
may be equal to their product. कितना इजी कर दिया सब देखो, मतलब हम लोग को जो एडिशनल कंडीशन जो दिया है कि सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा और बीटा का जो सम है वो प्रोडक्ट के बराबर है और मुझे a का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है -2/3 और अल्फा इंटू बीटा भी पता ही है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व करो, a का वैल्यू -2/3 है। ठीक है, यस एवरीवन। Yes, sir. अब तुम लोग सम नंबर 6 ट्राई करो। तो मैं बोला ना, ये अगर तुम लोग का आज ये कंप्लीट हो जाता है ना डी, ई में एकदम दिक्कत नहीं होगा। तुम देखो नेक्स्ट डे हम लोग ई करने वाले हैं, ई में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सो एवरीवन ट्राई नंबर डी 6 फास्ट ट्राई करो, इसको कंप्लीट करना है। So everyone note down question number 6. So I want to pay attention here. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, you are given a quadratic equation which is a square minus 5a plus a plus 3 sorry into x square plus 3a minus 1 into x plus 2 equals to 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें है क्या, देखो एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which one root of the equation is twice as large as the other। तो काम करते हैं, मतलब इन शॉर्ट क्या बताओ तो, इस सम में ऐसा है कि अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा पता है, 4। एक रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा। मतलब एक रूट दूसरे रूट से ट्वाइस है, 2 का डबल ट्वाइस 4 हो गया, 1 का ट्वाइस 2 हो गया। तो अगर मान लो मैं एक k ले लेता हूं तो दूसरा क्या होगा 2k। तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा इक्वल्स टू k, तो बीटा क्या हो जाएगा बताओ तो, कंडीशन के हिसाब से बीटा हो जाएगा 2k। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीवन। समझ में मैंने क्या बोला, कंडीशन के हिसाब से अगर मैं अल्फा को k ले लेता हूं तो बीटा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 मोड मतलब देखो दोनों में डिफरेंस है। 2 मोड मतलब ऐड, मतलब 2 ज्यादा, मतलब ऐड करो 2 ज्यादा। मतलब मेरे पास तुमसे 10 रुपया ज्यादा है, मतलब तुम्हारे पास जितना भी रुपए है उसमें 10 ऐड करके मेरे पास उतना रुपए है। लेकिन अगर मान लो 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब तुम्हारे पास जितना भी रुपए है उसका 10 गुना, मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दो, वो पैसा मेरे पास है। इस तरह का अगर हम कंपैरिजन करें तो वैसे ठीक वैसे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे बोला है कि 1 रूट इज ट्वाइस द अदर, तो मान लो मैंने एक रूट को k ले लिया तो दूसरा रूट क्या होगा 2 टाइम्स k। नाउ ऐसा कुछ नहीं कि तुमको यहाँ पे अल्फा को k लेना है तो बीटा 2k होगा, तुम ऐसे भी कर सकता था, तुम बीटा k ले लो तो अल्फा 2k हो जाए। सो दैट इज योर चॉइस। अब देखो आगे, ये तो बुक में कंडीशन दिया हुआ था। अब देखो दोनों का रूट्स का सम, सम मतलब किसके बराबर होगा, माइनस b बाई a के बराबर। और अल्फा और बीटा हम लोग को इन टर्म्स ऑफ k पता है, मतलब k प्लस 2k सो यहां पे हो गया 3k इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3a माइनस 1, मतलब k हो जाएगा माइनस ऑफ 3a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। एंड एक और कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू c बाई a। तो प्रोडक्ट मतलब k और 2k का प्रोडक्ट। ओके, तो यहां से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें k और 2k को, ये क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर हो जाएगा। Let us cancel to both sides. All right.
and mark it as equation number 2. अब एक बात बताओ, मुझे किसका वैल्यू निकालना है? मुझे a का वैल्यू निकालना है। जैसे मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज मान लो k 2a + 3a और k मान लो 2a² - 2, और तुमको अगर a का वैल्यू निकालना है तो तुम बताओ तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? तुम बताओ। सर इक्वेट के कर दीजिए। इक्वेट कर दोनों के है तो इक्वेट कर सकते, इक्वलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे k = इतना है, यहाँ k² = इतना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं k का वैल्यू को यहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो मुझे पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो a के टर्म्स मिल जाएंगे। समझ में मैंने क्या बोला? हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से k का वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नाउ माइनस ऑफ 3a - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3a - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 9 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9 a² - 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे मान लो सपोज यहाँ पे 1/2² है और यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे हम एक फैक्टर काट सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3a - 1 का होल स्क्वायर बाय 9 टाइम्स a² - 5a प्लस 3 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं हम। एक बार देखो तो सब कुछ ये वाला लाइन समझ में आया? प्लीज एवरीवन नोट डाउन। क्या हम यहाँ पे दोनों तरफ ये यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ पे पावर में 1 है, तो हम इसको रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो एक बार ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस अप्लाई a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो व्हाट इज a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला? इट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। नाउ 9a² कैंसिल हो गया, देखो दोनों तरफ, तो बचा 1 - 6a equals to -45a plus 27. That is we have 39a equals to 26. That is a equals to 26 by 39, मतलब ये हो जाएगा 2/3. This is it. तो मैं एक बार जस्ट ब्रीफ कर रहा हूं बस ऐसे। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, a का मुझे वैल्यू निकालना था। कंडीशन क्या था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो दो रूट्स मिलता है उन दोनों में रूट्स का रिलेशनशिप क्या होता है कि एक रूट दूसरा का डबल ट्वाइस है। एक के ले लिया मैंने, दूसरा रूट। अब हमको पता है कि दोनों रूट्स का सम माइनस b बाई a के बराबर होता है, और अल्फा और बीटा जो k में लिखा था मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इससे एक इक्वेशन आई। एंड मुझे पता था कि प्रोडक्ट c बाई a के बराबर है, तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, देखो एक बार, k का वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 से मिला था, ये वैल्यू को मैंने पूरा यहाँ पे रिप्लेस करके इसको सॉल्व करते हैं, और इससे सॉल्व करके मुझे a का वैल्यू मिल गया 2/3। सो इसको कॉपी कर लो, इसके बाद नंबर 7 को ट्राई करो। पहले कॉपी कर लो, और कोई भी अगर कंफ्यूजन है इस तरह का तो क्लियर कर लो पहले, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट सम, दैट इज नंबर 7। सो एवरीवन नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखना एक बार। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है and the equation is x square plus ax plus 8। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है देखना एक बार। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4, नाउ टेल मी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 is one root of the above equation। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता क्या है बताओ। सॉल्यूशन। या फिर से बोलिएगा। सॉल्यूशन।
वेरी गुड, सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन मतलब जैसे कि मान लो मैं ये बोलूं कि x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 का रूट्स अगर प्लस माइनस 2 है, मतलब ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब आंसर है, मतलब आंसर मतलब अगर x के जगह पे 2 पुट करें तो ये इक्वल टू 0 होगा। तो ठीक वैसे ही अगर 4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, दो रूट होना चाहिए लेकिन दोनों में से मुझे एक रूट पता है 4, क्वेश्चन में लिखा हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू x को सेटिस्फाई करेगी, मतलब हम ये वैल्यू को x के जगह पे पुट कर सकते हैं। सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा -6। मतलब हम लोगों ने इस कंडीशन से क्या किया, देखो ध्यान देना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 4 है, तो ये कंडीशन को यूज करके मैंने a निकाल दिया। अब देखो आगे क्या है देखना एक बार, and there is one more quadratic equation which is x square plus ax plus b equal to 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम लोग ने इस कंडीशन को यूज करके जो a का वैल्यू निकाला था वो मैं पुट कर सकता हूं, बिकॉज इसी इक्वेशन में यहां पे भी a है, यहां पे भी a है, मतलब ये दोनों a सेम है, ये दोनों a क्या है सेम है। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, जो इस कंडीशन को यूज करके जो हम लोग ने a का वैल्यू निकाला था उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सर सेकंड इक्वेशन में क्यों पुट करना है, क्यों पुट कर सकता है? अच्छा, एक ही क्वेश्चन में अगर सपोज ये दो इक्वेशन दिया हुआ है तो एक बात बता मुझे, यहाँ पे दोनों में a का वैल्यू डिफरेंट होगा या सेम होगा, बताओ। सर दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं सर, ये तो मेरे को पता ही नहीं नहीं। नहीं, एक बात बताओ, एक ही क्वेश्चन में तुमको a दिया हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी a दिया है, तो तुम एक बात बताओ, ये तुम्हारे हिसाब से लॉजिक क्या कहता है, ये a अलग अलग है या सेम है, बताओ मुझे। सर सेम ही होना चाहिए। सेम ही होना चाहिए, नहीं सेम होगा, क्यों, क्योंकि देखो एक बार, अगर जैसे मान लो सपोज ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या मैं इसे इसका रूट्स को अल्फा और बीटा ना लेकर के क्या मैं a और b ले सकता हूं, तुम बताओ तो इसका, क्यों ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हाँ सर। ले सकते हैं, a और b ले सकते हो, देखो तो इक्वेशन को ध्यान से। नहीं सर नहीं। क्यों नहीं ले सकते बताओ तो। सर ए तो ऑलरेडी है ही। a ऑलरेडी है तो तुम अगर रूट्स को a ले लेना, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये ना बोलता है इसके हिसाब से। तो हाँ सेम वे यहाँ पे अगर एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और यहाँ पे a है यहाँ पे भी a है, तो तुमको नहीं लगता कि ये a और ये डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा? सर नहीं क्लियर हुआ। हाँ आंसर नहीं है ना। क्लियर नहीं हुआ सर, ये ए का वैल्यू पुट किया वो क्लियर नहीं हुआ। नहीं, अच्छा ठीक है, चलो पुट नहीं किया। अब ये बताओ मुझे, मैंने पुट नहीं किया, अब तुम ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और बोला है यहाँ पे a यहाँ पे x का कोएफिशिएंट को डिनोट करने के लिए यूज किया जाए और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट को a से डिनोट किया जाए, इसका मतलब तुमको ये नहीं लगता कि ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है? तुम ये बताओ मुझे, इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है? तो सेम का मतलब क्या होता है, इक्वल ही ना होता है मैथ्स में। तो मैथ्स में सेम का मतलब अगर इक्वल होता है तो a का वैल्यू -6 आया, तो फिर ये a क्या है? -6। वही तो मैं बोल रहा हूं। ना देखो एक बार दूसरा पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखो एक बार, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल। क्या है बताओ तो एक बार, रूट्स इक्वल है। और हमको इस सम में, देखो ये सम में हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ था, एक ये और एक ये, और बोला गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो a निकालने के लिए मैंने इस कंडीशन को यूज कर लिया, अब b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन को यूज करेंगे। क्या है इसमें कंडीशन, देखो तो रीड करके बताओ तो, क्या है इस इक्वेशन का कंडीशन, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। value is given. ठीक है, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कैन आई से दैट इट्स डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर -4 into a into c equals to 0। तो यहां से b का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू हो गया -6 और b का वैल्यू हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन?
ऐसा तो नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें बोला गया था इस इक्वेशन का एक रूट 4 है, तो 4 को मैंने पुट कर दिया, ये निकल गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला गया था इसका रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होगा, मतलब b² - 4 * a * c = 0। इसमें a का वैल्यू जो मिला था वो सब्स्टिट्यूट कर, एक ही बात है, तुम यहाँ पे पुट करके इस तरह लिखो या यहाँ पे लेटर ऑन इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ a, एक ही बात है, तो एक ही चीज है। देन वी गॉट द वैल्यूज ऑफ a। Now question number 10 देखना है। So you have a quadratic equation whose roots are denoted with alpha and beta. So tell me what will be alpha plus beta? Alpha plus beta will be -p and alpha into beta will be 8. उसके बाद यहाँ पे पहला देखो, पहला कंडीशन है कि अगर अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, ये पहला कंडीशन। तो ध्यान में नहीं पड़ा, अगर अल्फा और बीटा स्क्वायर बराबर है, अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर है, तो हम लोग कैसे p निकालेंगे? ध्यान में, पुटिंग अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हम अल्फा के जगह पे बीटा स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बीटा क्यूब क्या हो जाएगा? 8, मतलब 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 क्यूब। So if power is same, it will equalize the base. And what is the value of beta? It's 2. एक बार बीटा का वैल्यू 2 आ गया, अब बीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हो या फिर 2 में, एनी वैल्यू। Putting beta equals to 2 in equation number 3. So we get, अगर बीटा का वैल्यू 2 है तो अल्फा क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। एंड लेटर ऑन हम लोग को निकालना क्या बताओ, तो इस सम में p का वैल्यू निकालना। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -p, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हिच इज 4 and the value of beta which is 2, and solve this, you will get the value of p equals to -6। ठीक है, 4 + 2 6, p equal to -6। ये पहला कंडीशन नंबर 1। अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 में लिखा हुआ है, नंबर 2 में लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल, ठीक है। तो फिर से सुनना एक बार, कंडीशन 1 कंडीशन 2, तो इस इक्वेशन से हम लोग ने ऑब्टेन की। इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन था कि अगर अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर है तो p का वैल्यू क्या होगा, और इसमें दूसरा ये कंडीशन ये है कि अगर अल्फा माइनस बीटा 2 होगा तो फिर p का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत एक इजी फॉर्मूला, हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक लाइन में आंसर आता है। क्या है वो? कैन आई से दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर equals to 4 alpha beta? Check once. Alpha plus beta whole square minus alpha minus beta whole square equals to 4 alpha beta. अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता ही है, पुट कर दो। अल्फा माइनस बीटा भी पता है, उसको भी पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा भी पता है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दो। 4 × 24। So we have p square equals to 32 plus 4 36। 36 हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। तो इस कंडीशन के हिसाब से p का 2 आंसर है, इस कंडीशन के हिसाब से p का 1 आंसर है। So this is a quadratic equation whose roots are alpha and beta. Now check in your column. Therefore, sum of roots
will be equals to minus b by a, that is alpha plus beta equals to b by a, and product of roots equals to c by a, that is b by a. There are many ways to solve this, but I'm taking LHS. I'm taking LHS, which is under root alpha by beta plus under root, I think मैंने कुछ mistake किया, nothing, under root beta by alpha minus under root b by a. अब देखो क्या करें, क्या मैं under root alpha by beta को under root alpha by under root beta लिख सकते हैं? ठीक है, alpha by under root beta, इसको लिख सकते हैं हम लोग square root of beta by square root of alpha. Now let us take LCM. LCM क्या होगा? Root alpha into root alpha. Root alpha into root alpha will become how much? It will become alpha. Root beta into root beta will become how much? Beta. और denominator में आ जाएगा root beta into root alpha. समझा? Now what is the value of alpha plus beta? b by and root beta into root alpha को हम लोग under root alpha beta लिख सकते हैं. So same way alpha into beta का वैल्यू भी पता है. ठीक है, इतना तक आ गया. अब बताओ मुझे x by root x का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? x by root x का root x. कैसे? x को हम लोग root x into root x लिखेंगे तो root x कैंसिल हो जाएगा, root x बच जाएगा. तो ठीक वैसे तुम सोचो यहाँ पे कि b by a के जगह पे x, तो एक बात बताओ तो x by under root x क्या होगा बताओ? root x. क्या होगा नेक्स्ट? c. काफी इजी सब है, तो एक बार ये कॉपी करना. And this way we have completed number D. Almost I have left few questions only, one or two, not more than that. I want everyone to revise this once again and send me the homework. In the next class we'll start E, and E you will find that it will hardly take few minutes time to complete number D, because तुम लोगों ने आधा से ज्यादा कैलकुलेशन तो D में सीख गए कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो सब तो सीख ही रहे थे. अब बस हम लोग को वहां पे सम करना है, फॉर्मूला यूज